So in the last video we have seen about the wave function which was in the region number 2. So in this video we will continue our discussion and we will try to find out the constants a and b. So what is a and b? A and b are constant. So now the wave function will be continuous. Okay. So to find out the a and b, that means the constants, we need some boundary conditions that is physically realizable. For example, the wave function will be continuous. That means ये जो हमारे पास wave function है psi versus r plot, the wave function must be continuous. There will be no discontinuity in this wave function. Okay, otherwise the first derivative will be infinite. But psi must be continuous in nature. So the wave function will be continuous, and if psi is to be continuous at point x equals to 0, that means in this point x equals to 0, psi must be continuous. So suppose that wave function is continuous at x equals to 0, but we know that wave function is 0 at x equals to 0 from the region 1 and region 2 data. So if psi is to be continuous at the point x equals to 0, psi 1 and psi 2 must approach the same value at x equals to 0. For example, समझ लो ये हमारे पास है x equals to 0 point. तो अगर at x equals to 0 पे psi क्या हो, psi अगर continuous होना चाहिए, for example psi is looking like this. So at this point psi 1 and at this point psi 2 also must approach the same value. psi 1 and psi 2 का वैल्यू सेम होना चाहिए at x equals to 0. अगर ये कंटिन्यूअस है तो ठीक है, क्योंकि ये जो कर्व है, ये जो psi है x equals to 0 पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, and that point is nothing but the value of the wave function. Okay, psi 1 and psi 2. Actually here at x equals to 0 potential energy is infinite, so definitely psi 1 or psi itself at x equals to 0 must be 0. psi क्या होना चाहिए, psi 0 होना चाहिए at x equals to 0 पे, एंड psi अगर कंटिन्यूअस है at x equals to 0 पे तो डेफिनेटली psi 2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा at x equals to 0. ओके, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर ये हमारे पास है x equals to 0 पॉइंट तो क्या होगा, हम जानते हैं psi 1 क्या है, 0. psi 1 equals to 0. So at x equals to 0 psi 1 will be 0. और अगर psi 1 अगर psi जो है हमारे पास वो है फंक्शन at x equals to 0 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब psi का वैल्यू, मतलब psi 1 का वैल्यू एंड psi 2 का वैल्यू at x equals to 0 पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. एंड अगर psi 1 is 0 at x equals to 0, then definitely psi 2 must also be 0 at x equals to 0 पे. This is why when limit x tends to 0 psi 1 and limit x tends to 0 psi 2, that must be equal because of continuity. ठीक है, and we know at x tends to 0 psi 1 is 0 because of the infinite potential energy. So it is 0. And now what about psi 2 at limit x tends to 0? We know that psi 2 is nothing but a cos h cross inverse 2me whole to the power 1 by 2 x plus b sin h cross inverse 2me whole to the power 1 by 2 x. From where I am getting this? I am getting from this last equation of psi 2. So just मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिमिट को इनपुट कर दिया x टेंस टू 0 पे psi 2 का वैल्यू, एंड लिमिट x टेंस टू 0 पे psi 1 तो ऑलरेडी 0 ही है, क्योंकि psi 1 एंड psi 3 आर 0 एवरीवेयर. नाउ यहाँ पे मैं अगर x की जगह पे 0 इनपुट कर दूं तो क्या होगा, cos 0, और यहाँ पे क्या होगा sin 0, बट sin 0 is itself 0.
but cos 0 is 1. So a into 1, I mean yeah, a into 1, that is a. So a will be 0. तो हमको मिल गया a कांस्टेंट, a क्या है, a है 0. ठीक है. Now what about b? क्या b भी 0 होगा? Let's see. So psi 2 is nothing but b sin 2 pi by h 2me whole to the power half x. क्या किया मैंने a इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं a इक्वल्स टू 0 इनपुट किया और कुछ नहीं. तो मैं अगर a इक्वल्स टू 0 इनपुट कर दूं तो पहले वाला जो टर्म है वो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा. बस हमारे पास ये b वाला टर्म बचा रहेगा. तो ये पे क्या होगा, psi 2 इक्वल्स टू b psi 2 pi by h 2me whole to the power 1 by 2 x. Now applying the condition, same continuity condition, psi must be continuous but now at x इक्वल्स टू l पे. ठीक है. तो x इक्वल्स टू l पे हमको करना होगा सेम बाउंड्री कंडीशन. तो क्या होगा, b sin 2 pi by h 2me whole to the power half. अब क्या होगा, x की जगह पे l हो जाएगा and that will be 0. Why it is 0? Because at x equals to l पे क्या हो रहा है, psi must be continuous, but at x equals to l पे जो हमारे पास psi 3 है वो क्या है, psi 3 is 0. Psi 3 is everywhere 0. And psi 3 should be equals to psi 2 because of this continuity. Psi 2 and psi 3 अगर continuous है तो definitely at x equals to l पे psi 3 and psi 2 क्या होगा, equal होगा. अगर psi 3 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ. ठीक है. और ये क्या है, ये है हमारा psi 2 कब, at लिमिट x टेंड्स टू l पे, और कुछ नहीं. इसलिए मैंने x की जगह पे बस l इनपुट किया और कुछ नहीं. नाउ b कैन नॉट बी 0, क्योंकि b अगर 0 हो गया तो क्या होगा, ये जो psi 2 है psi 2 0 हो जाएगा. इसका मतलब यही है psi 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बॉक्स के अंदर psi 0 है. मतलब अगर psi 0 है तो psi स्क्वायर क्या हो जाएगा, psi स्क्वायर भी हो जाएगा 0. And the probability of finding the electron inside the box is 0 everywhere. That means बॉक्स के अंदर पार्टिकल है ही नहीं. और ऐसा तो नहीं है, बॉक्स के अंदर पार्टिकल है. That means b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. ओके, बट a कैन बी 0. b 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये यही डिनोट कर रहा है कि psi 2 इक्वल्स टू 0. बट psi 2 अगर 0 हो गया तो how can we get the probability of finding the electron inside the box? We know that particle is present inside the box, so definitely b cannot be 0. So हमारे पास बस एक ही टर्म बचा है, वो है साइन वाला टर्म. तो साइन ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0. अब क्वेश्चन ये आता है, साइन ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0 कब आता है, मतलब जो एंगल है, कौन से एंगल पे साइन का वैल्यू 0 आता है. साइन का वैल्यू 0 आता है प्लस माइनस n पाई पे. ठीक है. So this angle equals to plus minus n pi. ठीक है. तो हमने अभी इसको किया. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, हमने जो बोल रहे हैं साइन ऑफ प्लस माइनस n पाई, तो उसमें n क्या है, n है इंटीजर. क्या n का वैल्यू 0 हो सकता है? लेट्स सी. फॉर n इक्वल्स टू 0 क्या होगा एग्जैक्टली. अगर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 इनपुट कर दूं तो क्या होगा, पाई तो 0 नहीं हो सकता. h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज नॉट आल्सो 0. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट 0. l बॉक्स का लेंथ तो 0 नहीं है. सो हमारे पास बचा है ओनली e. e मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. पर थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाए तो हम देख पा सकते हैं कि फॉर psi 2 उसका जो वेव फंक्शन क्या है, उसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन है d2 psi 2 by dx2. ओके, उसमें और क्या क्या था, psi 2 का एक्सप्रेशन. ओके, इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारे पास e है, e का वैल्यू अगर 0 हो गया तो साइन ऑफ 0 मतलब 0. So psi 2 must be 0, but we know that psi 2 cannot be 0. Even अगर आप लोग श्रोडिंगर इक्वेशन में इस e का वैल्यू 0 इनपुट कर दो तो हमको ये मिलेगा d2 psi by dx square equals to 0. That means अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, d psi by dx equals to c.
c क्या है, c है एक कांस्टेंट, एंड अगर मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट करूं तो हमको मिलेगा psi2 एंड दैट इज नथिंग बट cx प्लस d। बस कुछ भी नहीं करना, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन इंटीग्रेट मारो, दैट मींस आई मीन इंटीग्रेशन मारो, ठीक है। नाउ गेटिंग द बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू 0 क्या है, psi2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो अगर मैं ये जो psi2 इक्वल्स टू cx प्लस d है, मैं इसके जगह पे x के जगह पे अगर मैं 0 इनपुट कर दूं तो क्या होगा, psi2 0 हो जाएगा, तो ये भी होगा 0 और ये भी होगा 0, तो हमको मिलेगा बस d एंड d विल आल्सो बी 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन। एंड एट x इक्वल्स टू l क्या होगा, at x equals to L, psi2 is nothing but C into L. Okay, and we know that at x equals to L, psi2 is also 0, and that means L तो 0 नहीं हो सकता, तो definitely C होगा 0, ठीक है। तो C भी 0, D भी 0, तो psi2 क्या हो गया, psi2 हो गया 0 into x plus 0, that means 0। So इसका मतलब यही मीन कर रहा है कि psi2 is 0, that means बॉक्स के अंदर पार्टिकल है ही नहीं। इवन इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हो, अगर यहाँ पे मैं e का वैल्यू 0 इनपुट कर दूं तो psi2 क्या हो जाएगा, psi2 will be 0, but that is not feasible, that is not our condition, because we know particle बॉक्स के अंदर ही है, so it equals to 0 is not allowed, so n equals to 0 is also not allowed, therefore n क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 and so on। now इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को वेव फंक्शन तो मिल गया, हम लोग का एम क्या है, हम लोग का एम है वेव फंक्शन निकालना एंड एनर्जी निकालना। यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या होगा, हमने b का वैल्यू अभी तक नहीं निकाला, ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों को बस यही एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन से हम लोग काम चला लेंगे, b का वैल्यू हम थोड़े से आगे निकालते हैं, ठीक है। तो हमको एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो क्या होगा, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 2 पाई बाई h 2me होल टू द पावर हाफ l इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई, तो मैंने बस इस इक्वेशंस को बोथ साइड में स्क्वायर किया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद हमको ये मिल गया, तो इसमें क्या है, पाई स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट, हमको अल्टीमेटली e इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर मिल गया। तो यही है पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स के केस में एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें n क्या क्या हो सकता है, n हो सकता है 1 2 3 एक्सेट्रा। इवन ये जो n है, n इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं हो सकता, ये तो हमने एक बार बता दिया, साई क्या होगा, 0 हो जाएगा, आई मीन psi2 0 हो जाएगा। एक और रीजन इसका है और वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, अगर ये 0 हो गया तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। अगर मोमेंटम 0 हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0 हो गया, इसका मतलब यही है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और कोऑर्डिनेट हो जाएगा इनफाइनाइट, बिकॉज वी नो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस। सो अगर डेल्टा p हो गया 0, सो डेफिनेटली डेल्टा x क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब आप लोग उस पार्टिकल को बॉक्स के अंदर फिट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसका पोजीशन का अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट आ गया, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब उसका पोजीशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब वो बॉक्स के अंदर कहाँ पे है हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। इवन अगर मोमेंटम 0 हो गया तो क्या होगा, हम जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, p अगर 0 हो गया तो लैम्डा हो जाएगा इनफाइनाइट। अब एक पार्टिकल या फिर एक इलेक्ट्रॉन को बॉक्स के अंदर आप लोग फिट तभी कर सकते हो अगर उस पार्टिकल का वेवलेंथ एक फाइनाइट वैल्यू होगा। इनफाइनाइट वेवलेंथ का कोई भी पार्टिकल को आप लोग बॉक्स के अंदर फिट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉक्स का लेंथ है फाइनाइट, तो एक फाइनाइट लेंथ का बॉक्स के अंदर आप लोग कैसे इनफाइनाइट वेवलेंथ का पार्टिकल इनपुट या फिर इंसर्ट करोगे, that is not feasible। so Heisenberg uncertainty तो फॉलो नहीं होगा। उसके पास क्या क्या हो सकता है, बॉक्स के अंदर आप लोग उसको फिट भी नहीं कर सकते, एंड psi2 will be 0। तीन रीजन मैंने बता दिया क्यों n equals to 0 पॉसिबल नहीं है।
एनीवे आगे चलते हैं। सो हमको एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया E इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। तो मैं अगर n की जगह पे 1 इनपुट कर दूं तो क्या होगा, हमको मिलेगा ये एक्सप्रेशन। अगर मैं n की जगह पे 2 इनपुट कर दूं हमको मिलेगा ये एक्सप्रेशंस। n की जगह पे 3 इनपुट कर दूं तो मुझे मिलेगा ये, एंड सो ऑन फॉर 4 एंड 5 आल्सो एंड फर्दर। सो एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। ये दोनों एनर्जी लेवल्स का बीच में कोई एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हमको मिलेगा। द स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। हियर n इक्वल्स टू 1 पे जो हमको एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, क्योंकि उसके नीचे और कोई एनर्जी लेवल्स पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड स्टेट मतलब जो ग्राउंड पे एकदम बेस पे है, ठीक है, जो सबसे नीचे होता है। स्टेट विथ एनर्जी इज हायर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो n इक्वल्स टू n लेवल के ऊपर जो भी एनर्जी लेवल्स हमको मिलेगा उसको हम नाम देंगे एक्साइटेड स्टेट। जैसे n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 3 पे हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 4 पे हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हम लोग एनर्जी का एनर्जी का लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ओके, सो इसमें एक पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं एक पर्टिकुलर n के लिए एक पर्टिकुलर हमको एनर्जी लेवल्स मिल रहा है। मतलब हमको सेम एनर्जी लेवल पे एक ही स्टेट मिल रहा है। मतलब एक ही एनर्जी लेवल पे हमको एक ही स्टेट मिल रहा है। ऐसा नहीं है n इक्वल्स टू 1 पे हमको मोर देन 1 एनर्जी लेवल्स मिल रहा है, या फिर n इक्वल्स टू 2 पे हमको मोर देन 1 एनर्जी लेवल्स मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स देयर इज नो डिजेनरेसी। मतलब यहाँ पे कोई भी डिजेनरेसी नहीं है, ठीक है। डिजेनरेसी क्या है? सेम एनर्जी लेवल्स पे मोर देन 1 इंडिपेंडेंट क्वांटम स्टेट, या फिर आप समझ सकते हो सेम एनर्जी लेवल्स पे मोर देन 1 हमको क्वांटम स्टेट मिलेगा, उसको बोलेंगे डिजेनरेट। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हमको सिंगल एनर्जी लेवल्स वैल्यू मिल रहा है, या फिर एनर्जी लेवल्स मिल रहा है। दिस इज व्हाई देयर इज नो डिजेनरेसी एट ऑल। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट अबाउट द वेव फंक्शन? नाउ psi 2 equals to b. Okay, so how can I get this? Okay, so I have psi 2 equals to b sin 2 pi by h 2me whole to the power half x। मैं अगर e के जगह पे वैल्यू को इनपुट कर दूं n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा? सब बहुत सारे मतलब कैंसिल आउट होने के बाद हमको जो मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशंस। b तो कांस्टेंट है, b अभी हम लोग नहीं निकाले, और ये हो जाएगा साइन के अंदर n पाई x बाई l, ठीक है। ये आ जाएगा साइन n पाई x बाई l। इसमें अगर मैं वैल्यू इनपुट कर दूं तो हमको यही मिलेगा, जिसमें क्या है n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। सो हमको ऐसे मिलेगा एनर्जी लेवल्स, और ये है हमारा वेव फंक्शन। सो psi 2 equals to b sin n pi x by l। On the next video we will find out what is b। Okay, so on the next video we will find out what exactly b is, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे सिस्टम के लिए चले जाएंगे एंड पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स खत्म हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।